Good afternoon, students. Welcome to our LFCS online class. We had started chapter 9 and also we had completed some important topics such as the topics names are first of all, let us go through the topics which we had discussed, that is condition of women and caste system, and also what lead towards reforms, that is English education and change, and the other topic which we had discussed, that is very important, that is women's reforms. And in women's reforms, there are some important points which you have to remember, and that points are sati practice and movement against it, and the second topic, that is widows and remarriage, and the last topic of this means women's reform, that is child marriage. Okay, and after child marriage, the next topic which we had discussed, that is women's education. Women started taking education, and after taking education, some of them got higher education, and after getting higher education, they became authors and they started to write their own books. Okay, and after these topics, here we today we are going to start a new topic, that is caste reforms. Okay, which topic? Caste reforms. And in caste reforms, there are two points that is very important. Which are these two points? First, condition of the untouchables. What was the condition of untouchable people during that time? What type of problems they are facing, uh, being become untouchables? Okay, and the second, beginning of the caste reform movements, and after that they started taking some changes, कुछ चेंज करना चाहते थे, कुछ इन विच कास्ट रिफॉर्म, एंड फॉर दैट दे स्टार्टेड मूवमेंट. उसके लिए कुछ चेंज चाहिए, तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, कुछ आवाज़ उठानी पड़ती है. तो इसी तरह से कुछ आवाज़ उठाई गई इस मूवमेंट, इसके लिए बिग कास्ट के से रिलेटेड. ओके, okay, after that we will continue social reformers. There are so many social reformers who worked for the upliftment of a society, and especially they worked for the upliftment of scheduled caste, lower caste people, because during that time they were treated very badly. Their conditions were very poor. Okay, so let us start with the first point, that is conditions of the untouchables. Okay, so open your book. Okay, beta. Yes, now let us see condition of the untouchables. The condition of the untouchables were equally pathetic. The condition of untouchable people also very pathetic, means बहुत ही शोचनीय थी, दयनीय थी, बहुत ही बुरी हालत थी. The untouchables performed several works such as, और इन अनटचेबल्स पीपल को बहुत सारे खराब काम करने पड़ते थे, जैसे कि निम्न वर्ग वाले काम करने पड़ते थे, जैसा कि सच एज रिमूविंग डेड बॉडीज़ को इधर से उधर करना, मेकिंग लेदर गुड्स, डेड बॉडी में से चमड़ियाँ निकालना, चमड़ी निकाल करके उस चमड़ी से लेदर का गुड्स बनाना, जैसे कि हम लोग कैरी करते हैं बेल्ट, पर्स, like wallet, and also so many things we use that is made up of a leather. Okay, and tanning leather, sweeping streets, and cleaning toilets and drains. These are the works done by the untouchables people. Upper caste regarded them as impure because of their low work. The upper caste people treated them as a what? They treated them as a
इम्प्योर, अशुद्ध मानते थे। इन सब कामों की वजह से जो अपर कास्ट के लोग थे, क्या उनको मानते थे कि वो अशुद्ध हो गए हैं, यानी चमड़ी उठाया, गंदगी साफ किया तो वो अशुद्ध हो गया। ठीक। एंड अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज ऑन देम, और कई सारे ऐसे पाबंदियां उनके ऊपर लगाई गई, जैसे कि वो किसी वेल से पानी नहीं निकाल सकते, किसी हैंड पाइप्स को नहीं छू सकते, कहीं मंदिर में एंट्री नहीं ले सकते, पूजा नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हाई कास्ट के लोग जहाँ पर रहते हैं उस स्ट्रीट से वो नहीं गुजर सकते। अगर बाय द वे जाते भी हैं तो उसके बाद से लोग अनेक तरह की बातें सुनाते हैं, और भी बहुत सारी उनको बातों को झेलना पड़ता है। ठीक। सो बिगिनिंग ऑफ, अब इसके बाद से जब लगा कि अरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, हमको इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, फिर इसके लिए सोचा गया कि क्यों ना इसके विरोध में हम लोग आंदोलन किया जाए कि क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो इसके लिए हम इंडियंस ने पहले वर्कआउट नहीं किया। पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे कि हम सारे लोगों को एक साथ मिक्स होना पड़ा, मजबूरी में मिक्स होना पड़ा। अब देखते हैं कैसे हम सारे लोग एक साथ मिक्स हुए, ऐसी क्या कंडीशन आई, सिचुएशन आई जिससे कि पूरे कास्ट, सारे तरह मतलब 4 कास्ट के लोग एक साथ होने पर मजबूर हो गए। फर्स्ट, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ सच एज, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी में कौन कौन से आइडियाज़ स्प्रेड हो रहे थे, जैसे कि आपका ह्यूमनिज्म है, मानवतावाद, जिसको ह्यूमनिज्म क्या है, मानवतावाद, इक्वालिटी, मानव इक्वालिटी, समानता, एंड रीजनिंग मेड, और विचार करने की जो क्षमता है, मेड पीपल क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटीज़ पैदा हुई, इसके बारे में लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर ये इनइक्वालिटीज़ हुआ क्यों, क्यों इस तरह की बात समाज में चलती हैं, क्यों बराबर नहीं देखा जाता है। एक इंजॉय करता है वहीं पर और हम वहीं पर परेशान होते हैं, हमारे साथ बैड ट्रीटमेंट किया जाता है, इल ट्रीटमेंट किया जाता है। द रूल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया ब्रॉट अबाउट सम वेरी डायनामिक चेंजेस। अब इनकी तो चांदी चांदी है, किसकी, अनटचेबल्स की। अब ब्रिटिश जब आए, उनके राज में कुछ ऐसा डायनामिक चेंज आया, बहुत ही बड़ा चेंज आया। वो चेंज कैसा था और क्या चेंज था? द ब्रिटिश लॉज वर सेम फॉर ऑल कास्ट। अब ब्रिटिशर्स ने जो लॉज, कानून बनाए, वो कानून सबके लिए बराबर थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। अब हो गए ना सारे के सारे एक कैटेगरी में आ गए। अब कहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, अब कहाँ शेड्यूल कास्ट। ठीक। The British laws were same for all castes. For instance, for example, abroad a railway coach, all classes travel together. Suppose आपको रेलवे से ट्रैवल करनी है तो एक रेलवे कोच में सारे कास्ट के लोग ट्रैवल करते हैं। वहीं शेड्यूल कास्ट भी है, और वहीं पर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र हैं, सारे लोग एक साथ बैठ कर के ट्रैवल कर रहे हैं। These compelled the people of different castes to mingle with each other, और इसी मजबूरी बस उन्हें एक साथ होना पड़ा। Economic policies as discussed in preceding chapters caused widespread landlessness and decentralization. Western education introduced Indians to many liberal ideas and made them more aware of the need to reform their societies. अब क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन ने सबके दिलो दिमाग में छा गया कि हमें रिफॉर्म, चेंजेस लानी है, हमारी सोसाइटी में चेंजेस लानी है। जब तक हम चेंजेस नहीं लाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। In fact, some
outcast communities were able to prosper under the British rule. अब कंडीशन क्या हुई, कुछ आउटकास्ट जो कि लोअर कास्ट के पीपल थे वो ब्रिटिश के रूल में दे स्टार्टेड टू प्रोग्रेसिंग डे बाय डे. Some untouchables, or you can say some lower caste people, they started to progressing day by day in the during the rule of Britishers. How they progressed one suddenly? What happens? Let us see. For example, during British period, demand for shoes increased. During the time of Britishers, there was a demand for too much demand for shoes. So from here started prosperous, or you can say suddenly they increased their prosperity day by day, and demand for shoes increased. So communities, like especially which communities is started to progress day by day, like मंडी घास प्रॉस्पर्ड. मंडी घास जो है एक आप कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं जो कि कम्युनिटीज है वो आगे बहुत बढ़ने लगी, जो कि जूता बनाने का मेंडिंग का काम करते थे. जैसे कि ये लोग क्या होते थे, दे आर एक्सपर्ट. In which field they are expert? They are expert in removing skin from dead bodies, and also tanning and cleaning hides. These were the you can say skills present in that people. So from here they started to prosper. Okay, these were the situations under caste reforms. We have completed our caste reforms. Now see here, some social reformers, they entered in this point. Okay, and what they started to do, they started to do some upliftment for the lower caste people. So here let us see social reformers. First, in social reformer, the very important role played by Jyoti Rao Govind Rao Phule. Jyoti Rao Govind Rao Phule. Jyotirao Govindrao Phule occupies a respectable position among the social reformers of his age. I just told ना कि इस एज में, उस समय काल में ज्योतिराव फूले सबसे इम्पॉर्टेंट और रिस्पेक्टेबल पोजीशन होल्ड करते थे. ठीक. ही वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ फ्लावर सेलर्स, मीन्स माली के घर में उनका जन्म हुआ था. ही रिसीव्ड, माली के घर में जन्म होने के बावजूद भी ही रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन अगेंस्ट अपोजिशन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन. अपोजिशन के बावजूद भी उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लिया. फूले फॉट हार्ड टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. He worked very hard and also fought very hard for the you can say for the ending of caste discrimination. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए उन्होंने बहुत कठिन मेहनत की, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी. एंड ब्राह्मण्स डोमिनेशन इन महाराष्ट्र. He organized marriages without the help of priest. अब देखिए उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण को नीचा दिखाने के लिए, नीचा करने के लिए जो मैरिजेस उन्होंने वो अटेम्प्ट करवाते थे विदाउट प्रीस्ट. उनका ये था कि बिना प्रीस्ट के भी, बिना ब्राह्मण्स के भी मैरिजेस हो सकते हैं. तो इस तरह से उन्होंने ब्राह्मण को धीरे धीरे अलग करना शुरू किया और बिना प्रीस्ट के उन्होंने मैरिजेस भी करवाना स्टार्ट कर दिया. फूले प्रोपोगेटेड द आइडियाज दैट these land in reality belonged to the lower caste. और फूले यही नहीं, फूले ने ये भी प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि अरे बाबा, रियली में ये जो हम कंट्री है वो
इनका कंट्री नहीं है, ना ब्राह्मण का है, ना क्षत्रिय का, ना शुद्ध वैश्य का, ये हमारा कंट्री है, हमारे लोअर कास्ट की कंट्री है। यस, लैंड इन रियलिटी बिलोंग टू द लोअर कास्ट। ये लैंड, पृथ्वी जमीन किसकी है? लोअर कास्ट की है। हु वर द नेटिव्स ऑफ दिस लैंड एंड दे वर ओनली नेटिव्स ऑफ दिस लैंड। In the year 1873, he wrote a book titled Gulam Giri. And after that, what happened? He wrote a book, and the name of that book, that is Gulam Giri, which he dedicated to the American movement. जिससे प्रेरित होकर के उन्होंने इस बुक को लिखी थी, अमेरिकन मूवमेंट। He also protested against the different forms of social inequalities prevalent in Indian society. और भी उन्होंने जो भी इंडियन सोसाइटी में और जो इविल्स हो रहे थे, बुराइयां हो रही थी, उसके विरोध में भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। He formed the सत्य शोधक समाज। उन्होंने किस समाज की स्थापना की? सत्य शोधक, whose primary aim was to improve the condition of the oppressed classes। और इसका मेन, सत्य शोधक समाज का मेन एम क्या था? टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट पीपल। ओके, एंड others social reformers also here, related to other social reformer we will continue tomorrow. Okay, they were Mahadev Govind Ranade and Ramakrishna Bhandarkar and Swami Vivekanand and Ramakrishna Mission, Kundu Kuru Veer Salingam and also Periyar Rama Swami। इन लोगों के बारे में हम लोग कल स्टडी करते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग पढ़िएगा, नहीं समझ में कहीं अगर कोई दिक्कत होती है, यू आस्क मी, कभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच। थैंक यू बेटा।